हमारी जो डिस्कशन है दैट इज ऑन anonymity in Bitcoin. So, but Bitcoin does not give you anonymity. What does it actually give you? Pseudonymity. ठीक है. So pseudonymity को how do you convert it into anonymity? You add unlinkability. And what is unlinkability? कि आपके डिफरेंट pseudonyms आपस में लिंक ना हो सके. ठीक है. तो अच्छा, and we looked at David Chom's eCash. अच्छा, what was the anonymity set? Anonymity set की बात की थी हमने. What is the anonymity set? You hide in a crowd. ये याद है आपको कि जितने ज़्यादा लोगों में आपकी आइडेंटिटी कंसील होगी उतना बड़ा आपका anonymity set है. And why do you have the concept of an anonymity set? Because overall it is very very hard to hide in the complete set. हाँ. अच्छा. तो again आपने जब anonymity set define करना होता है या कैलकुलेट करना होता है तो you need to know कि आप किसके against protect कर रहे हैं, उसकी capability क्या है, what information he has, what information he can get, जो आपका जो attacker है. So this is how security is generally done. अच्छा, then we have the concept of anonymous eCash, 1983. और ये सब कुछ समझ आ गया था how this worked? किसकी समझ में नहीं आया? So the idea was कि आपकी समझ में नहीं आया? अच्छा, चलो that's different. ठीक है. किसने अटेंड किया और उसकी समझ में नहीं आया? हाँ. तो ये इसका क्या वो एनालॉजी किसी ने बताई थी ना कि वो आप एक नोट लें जिसपे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर को आप कवर कर दें, यू मेक अ नोट, बैंक नोट, उसके ऊपर आप वो स्टिकर लगा दें या वो स्क्रैच सर्फेस लगा दें सीरियल नंबर पे, आप बैंक के पास ले जाएं, बैंक विल पुट अ सिग्नेचर ऑन इट and then later on you take off the serial number and you spend the note. So that means that the note will be valid but bank will not know who is spending what या किसके पास वो नोट था, किसका सीरियल नंबर किसके पास है. ठीक है. तो ये एक तरह का this is different from normal eCash. This is anonymous eCash कि जो centralized आपकी पार्टी है, even that does not know who you are. This is the person, this is him. Disadvantages were कि centralization है और interactive protocol है. What does interactive protocol mean over here? Interactive protocol मतलब आपको you have to communicate with the bank and that takes a long time. मैंने बताया था ना कि 20 मिनट लगते हैं पेमेंट प्रोसेस करने में पिछले दिनों में. जब ये eCash जब एक्चुअली लॉन्च हुआ था बैक इन Windows 95 या 98 पे, it would take 20 minutes to process a transaction because they had to contact each party and their transaction होती होती. अच्छा, यहाँ पे what did we cover in this slide? हाँ, basically shared spending means that the spender is probably the same person, probably. और चेंज एड्रेस का भी डिस्कवर्ड कि जो छोटी पेमेंट होगी बहुत छोटी, दैट इज प्रॉब्ली अ चेंज एड्रेस. तो then you can guess कि the sender and the person with the change address are the same party. अच्छा, what were idioms of use? ये नहीं आपने नहीं पढ़ा था? नो सर. हमने डिस्कस किया था कि idiom क्या होता है. सर आप स्टार्ट करने लगे थे, आपने कहा टाइम लग जाएगा. नहीं, मैंने वॉलेट सॉफ्टवेयर का तो बताया था आपको, इडियोसिंक्रेसीज ऑफ वॉलेट सॉफ्टवेयर, कि पुराने जो वॉलेट्स होते थे वो हर वक्त चेंज एड्रेस सबसे पहला आउटपुट डालते थे ट्रांजैक्शन का. तो पीपल कुड गेस के अप टू दोज इयर्स जितनी भी ट्रांजैक्शंस आई हैं जिनका पहला आउटपुट जो है दैट्स प्रॉब्ली अ चेंज एड्रेस. तो दैट वुड मीन कि अगर ये एलिस है और ये बॉब है तो दिस इज प्रॉब्ली आल्सो एलिस बिकॉज दिस इज अ चेंज एड्रेस. इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप नोट करके you can make educated guesses and you can cluster transactions together. You can figure out कि हाँ जी अगर ये blockchain है,
you can figure out कि, in fact let me show you a cluster. So this was the paper जिसने सबसे पहला most influential paper called A Fistful of Bitcoins. उन्होंने they devised some guesswork techniques. So one was again कि जी पहला जो output है, this is probably the sender, and they thought कि हाँ जी change address जो है always a fresh address, and it is always a smaller जो value जा रही है. So that is a change address. And उन्होंने तो ये जब इन्होंने process की, इन्होंने पूरे blockchain में they downloaded all the transactions and all the addresses, and they tried to group them together in terms of ownership. So then you get all the addresses and you cluster them. ये कुछ addresses हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, and then you can make guesses about their identity. And we'll take a look at that. तो इसमें इस process में since there's guesswork involved, you can have a lot of false positives. You know what a false positive is? False positive is कि अगर ये let's suppose Alice के मैंने guess किए कुछ addresses, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ Bob के भी हों. So this is a false positive. False negative would be कि जी Alice का यहाँ पे कहीं निकला है कुछ addresses, something like that. तो इसमें काफी you have to have manual oversight, मतलब ये आप unsupervised नहीं कर सकते. And once you do that, then you cluster it into real world identities. तो ये उन्होंने किया, इन्होंने जो experiment की थी, and they made all these clusters where they saw, अच्छा तो यहाँ पे each point over here is an address, ठीक है, and based on the number, ये जो size है इनका, this size is basically the volume of transactions. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं transactions ज़्यादा हैं in this cluster, but this size is small. What does that mean? ट्रांजैक्शन कम है. कि transaction amounts are very small. यहाँ पे transaction amounts are much larger. तो एक दफा आपने जब cluster कर लिया, so then you can try to make educated guesses about who these people are. अब ये हुआ था, this is from 2013. So 2013 में there was a Bitcoin exchange which processed all the Bitcoin transactions, the majority of them, which was Mt. Gox. So this is probably Mt. Gox. ठीक है, because सबसे ज़्यादा Bitcoin में जो transactions हुई हैं network पे till that date are in this cluster. इसी तरह उस वक्त एक बहुत पॉपुलर गेम आई थी, गैम्बलिंग गेम, which was called Satoshi Dice. उसमें आप क्या करते थे, you'd bet small amounts of Bitcoin, और वो फिर ब्लॉकचेन पे डिपेंड होता था कि कौन सी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में एक्चुअली जाती है, कौन सी डिस्कार्ड हो जाती है, एंड बेस्ड ऑन दैट you'd win a certain amount. So that is probably this one. I think that is this one. ये समझ ये लगे. सर्कल का रेडियस है, ये तो ये बता रहा है कि अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस. नहीं, not number of transactions, the amount of transactions. Number you can look at from these lines. जितनी ज़्यादा lines हैं, that means कि उतनी ज़्यादा transactions हुई हैं. But transaction की जो amount है, जो money जा रहा है transaction में, जो कम है. bitcoins that are being spent, वो यहाँ पे बहुत कम है, but यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. मतलब कि बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस को एक्सचेंज करें, बेशक जो आप ट्रांजैक्शन करें वो कम हो अमाउंट. हाँ, वो पर्पल वाले में relatively transactions कम है, but overall bitcoins जो है वो ज़्यादा exchange हो रहे हैं. गेम वाली बात नहीं समझ लगी. सर ये एक गेमिंग वाली address- सर वो जो आप. हाँ, वो बेसिकली गेम थी कि जी मैं आपको ट्रांजैक्शन मैं बेट करूं कि जी ये जो गैम्बलिंग होती है, यस सर. यहाँ पे किसी ने की हुई गैम्बलिंग? नहीं? हाँ, इन्होंने की हुई है. हाँ, तो वो आप एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं विच इज बेसिकली अ बेट, एंड द बेट वुड बी कि जी ये बेट को अगर अगला जो ब्लॉक जो आएगा उसका जो हेडर है उसकी लास्ट वैल्यू ये होगी, तो ऑल दिस मनी विल गो टू हुएवर प्रेडिक्ट्स इट, इस तरह की चीज. तो वो फिर काफी लोग छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस करते थे, एंड देयर वुड बी वेरी स्मॉल अमाउंट ट्रांजैक्शंस. तो दैट इज सतोशी डाइस, उनकी वेबसाइट होती थी. तो उनके एक एड्रेस पे वो सारे लोग भेज होते थे ट्रांजैक्शंस, एंड फिर विनर वुड गेट द रिवॉर्ड. और ये दिस बिकेम सच ए न्यूसेंस के लोगों ने फिर कंप्लेन करना शुरू किया कि ये सारी हम रेवोल्यूशनरी नई टेक्नोलॉजी लाएं और ये लोग गैम्बलिंग शुरू कर दी लोगों ने. तो दिस इज नॉट व्हाई वी क्रिएटेड बिटकॉइन, बिकॉज इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा होता था कि आपके पास ब्लॉक में जगह ही नहीं होती थी टू पुट इन लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस. यू बी पुटिंग इन दीज सिली ट्रांजैक्शंस.
अच्छा, now you have all these other clusters. तो इनमें से you can imagine कि और कौन सी बड़ी हमने देखी है बिटकॉइन यूजेज कहाँ पे हो रही है, हुई थी? What was a place where people would buy or sell a lot of or use a lot of Bitcoin? Silk Road. So this you can guess is probably Silk Road. ठीक है? And इसी तरह these are also probably other exchanges, Bitcoin exchanges. So another thing you can do is to make sure कि आप, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सिल्क रोड को एक पेमेंट करूँ, मैं कोई चीज़ खरीदूँ वहाँ से एक पेमेंट करूँ, एंड उससे ये होगा कि जिस एड्रेस पे मैं पैसे भेजूंगा सिल्क रोड को, आई विल गेट देयर एड्रेस, फिर उस एड्रेस को मैं ब्लॉकचेन पे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ट्रैक करूँ, एंड अल्टीमेटली दैट एड्रेस विल एंड अप इन वन ऑफ दीस क्लस्टर्स. डज दैट मेक सेंस? एंड देन आई विल नो कि ये सिल्क रोड का एक क्लस्टर है, बिकॉज मैंने वो पेमेंट सिल्क रोड को की थी. ठीक है? सो दैट इज हाउ पीपल डिड, they actually tracked down, वो उन्होंने खुद real world transactions की. Again researchers ने, how many transactions did they do? They did a few hundred transactions. They did 344 transactions. Mining pools के साथ, wallet services, exchanges, vendors, gambling sites, and they bought all of these things. ये I think, ये mug कहाँ से? ये mug तो कोई Bitcoin की exchange है, और they got all these other things. यहाँ Silk Road का कुछ नहीं है, but खैर. And then they were able to figure out who these clusters were. So purple is Mt. Gox, Satoshi Dice is वही बीच वाला, and red is like we thought it was Silk Road. ठीक है? और बाकी जो है वो exchanges हैं. ठीक है? Does that make sense? Do you understand कि how anonymity is being broken using simple techniques and a lot of analysis? So Bitcoin is not perfectly anonymous. So another thing that can be done is कि आप let's suppose कि दो parties हैं, Alice and Bob. अब Alice wants to, Alice might not know Bob's identity. या नहीं, let's assume ये basically that's the same thing these people did. कि अगर मैं Silk Road से transact करूँ, तो ultimately I'll figure out Silk Road का cluster कौन सा है. And based on that, I'll be able to see all other addresses that worked with that cluster. तो मुझे एक किस्म की I'll get some sort of insight. तो इसमें जो service providers हैं, centralized service providers like Silk Road, Mt. Gox, exchanges जो सारी हैं, वो बहुत से पैसे आ रहे होते हैं, and then they're going out and they're going through a few addresses. So it's easy to see के transaction का flow कहाँ से जा रहा है. और वो आप ब्लॉकचेन को देख सकते हैं, बिकॉज द ब्लॉकचेन इज अ पब्लिक लेजर. तो एंड अगर सारे फ्लोज उनके थ्रू जा रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आप कोई एक्सचेंज है, कोई बड़ी एक्सचेंज लाइक Mt. Gox, तो Mt. Gox अल्टीमेटली सारी जो एक्सचेंजेस हैं, टू ऑपरेट लीगली दे हैव टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल देयर क्लाइंट्स. अब ये जो फिस्टफुल ऑफ बिटकॉइंस था, इन्होंने ये टेक्निक अप्लाई की, and they actually used it later on to trace some stolen bitcoins. किसी ने इन्हें बताया कि जी ब्लॉकचेन में ये एड्रेस है ABCX, और ये जो बिटकॉइंस हैं ये चोरी हो गए थे. ये बड़ा पब्लिसाइज, किसी ने, हैकर ने की स्टील करी. ठीक है? उन्होंने they tracked it all the way up to several dozen addresses, and they realized कि जी ये जो है कि यहाँ पे आके किसी ने एक एक्चुअल एक्सचेंज से पैसे रिट्रीव किए. ठीक है? Does that make sense? तो यहाँ पे अगर वो एक्सचेंज पे कोई प्रेशर डाले, तो they can get the identity of a person who is linked to this. हो सकता है वो बंदा ना हो सकता है यहाँ से यहाँ कोई legitimate किसी और को उसने दिया हो सकता है only this hop is the actual attacker, but you get a link there somehow. This is technically coin tainting. It is conceptually it is the same as coin tainting. So is this clear to everyone? कि आप track कर सकते हैं using the blockchain. आप cluster devise कर लें, and then you see कि उस cluster को कहाँ पे cache किया जा रहा है real world में, and then you can figure that out. अब इसमें there is also हो सकता है कि someone is also careless. जैसे मैंने बताया ना कि सिल्क रोड का जो बंदा अरेस्ट हुआ था,
वो ही एवरीथिंग वाज सुपर प्राइवेट, उसने पूरा टॉर पे चला रहा था, वो वीपीएन के थ्रू उसको करता था, एडमिनिस्टर करता था वेबसाइट को। हुआ क्या कि उसने अपना एक ईमेल एड्रेस कहीं सिल्क रोड फोरम पे डाला, कोई एनोनिमस ईमेल एड्रेस था, बट कहीं पे उसने इंटरनेट पे रियल वर्ल्ड किसी फोरम पे डाल दिया विद हिज ओन आइडेंटिटी। So this is carelessness. So then someone who is an investigator can link the two and say, "Hanji, this email address, let's suppose that email address is abc@gmail.com. Yeah, let's assume that email address is dreadpirateroberts@gmail.com. तो ये टॉर पे पोस्ट करें तो that's okay. But if you post it in a public forum, dreadpirateroberts@gmail.com पे मुझे contact करें और नीचे मैं अपना नाम लिख दूँ, हाँ जी, my name is Taha Ali. So then it's very obvious के there is some link. Okay, so this is the carelessness factor. And then there is another reason, which is the time factor, which is that all of these attacks, they improve with time. Okay, अब लोग क्या कर रहे हैं कि they're using machine learning techniques to try to track blockchain को parse करके analyze करके to try to track looking at the timings of certain flows कि जी ये probably ये बंदा है, ये probably वो बंदा है, ठीक है? So this is also happening. टाइम पे फैक्टर इस तरह भी हो सकता है कि वो जो एडवर्सरी होते हैं दरमियान में बैठा होता है, हर एक नोड के साथ वो मल्टीपल टाइम कनेक्टेड होता है। हाँ, वो अभी that's the next slide, that is this part, कि that is called network layer de-anonymization. ये हमने अटैक डिस्कस भी किया था क्लास में कि आप एक कंप्यूटर लें, सुपर कंप्यूटर which connects to all the nodes, and then it waits to hear who is the first one to announce a transaction. And that is probably the same person who is making the transaction. And then you can tell कि हाँ जी ये this is this person. So आपके पास at least IP address आ जाएगा, and on the basis of that you can start some investigation. Is that clear so far? Okay. Another thing that is एक और चीज है which we need to think about is कि a lot of people use services which are online wallets. अब आप अगर किसी if you don't actually want to transact in bitcoins yourself, because bitcoins को handle करना काफी complex होता है, but you still want कि आपके पास कोई bitcoins हो, तो what would you do? Wallets. मतलब आप किसी exchange से account लेंगे and they'll give you an online wallet. ठीक है? There are 2 or 3 types of wallets. एक तो मारू कॉइन सबने चला लिया? Yes, sir. अच्छा, तो मारू कॉइन में जो वॉलेट है that is your own personal wallet, ठीक है? And उसको यूज करने के लिए you have to understand the basics of cryptocurrency. जी. वॉलेट अकाउंट को कहते हैं जिसमें आपको ट्रांजैक्शंस नजर आ रही हैं। एड्रेस के ऊपर Wallet is actually your software which holds the keys. It can be software, it can be hardware. But आपकी key is maintained है वहाँ पे, ठीक है? That is the correct definition of a wallet. But what many exchanges do, they offer you something called online wallets. ठीक है? अब online wallet में it's kind of like a bank account या online wallet में क्या होता है? It is designed for people who are not Bitcoin users, मतलब it is designed to make things extremely easy. तो वहाँ पे अगर मैं लॉग इन करूँ टू एन ऑनलाइन वॉलेट, तो वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होगी कि हाँ जी आपके बैलेंस में यू हैव 30 बिटकॉइंस एंड हु डू यू वांट टू सेंड टू। उनका एक फील्ड होगा, इसमें आप अपने रिसीवर का एड्रेस डाल दें एंड द मनी विल बी ट्रांसफर्ड, ठीक है? मतलब इट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ पे if someone wants to transfer to you, तो the exchange will give you कि हाँ जी आपको अगर रिसीव करना है तो this is your address, let's say your address, ठीक है? तो आपके पास एक अपना एड्रेस होगा जिस पे आप रिसीव कर सकते हैं और एक ऑप्शन होगी कि आप दूसरों का एड्रेस डालें एंड भेजें। अब देयर इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस हियर व्हिच इज के एक्सचेंजेस जो होती हैं दे मेंटेन देयर ओन वॉलेट्स व्हिच आर रियल वॉलेट्स जस्ट लाइक आपके मारू कॉइन के वॉलेट्स हैं, ठीक है? तो अगर आप 30 बिटकॉइंस ट्रांसफर करें टू लेट्स से बॉब और टू एनीवन एल्स, तो बॉब को जो ट्रांजैक्शन आएगी द सेंडर एड्रेस विल प्रोबेबली बी अ वॉलेट फॉर द एक्सचेंज। इट वोंट बी आपका अपना वॉलेट, जैसे आपका अपना बिटकॉइन एड्रेस उस तरह से नहीं होगा, ठीक है?
try to think of it this way कि let's suppose आप Marucoin चला रहे हैं, ठीक है? If you're running Marucoin, you have your own address, which is, let's suppose you have Alice का एक address है, ठीक है? And if she wants to transfer it, it will go to Bob's address. ठीक है? This is very very simple, straightforward. आपके पास ये दोनों addresses हैं. तो जब आप ऑनलाइन वॉलेट होगा तो यू विल हैव, आपको एक्सचेंज जो है वो अनाउंस कर देगी एक एड्रेस कि जी दिस इज योर रिसिपिएंट एड्रेस, एंड इफ यू वांट टू सेंड टू समथिंग यू पुट इन बॉब्स एड्रेस. अब एक्सचेंज के पास अपने वॉलेट्स होंगे. एक्सचेंज, लेट्स अज्यूम कि एक्सचेंज हैज अ बिग पूल जहां पे सारी जो ट्रांजैक्शंस आती हैं एक्सचेंज की वो वहां आती हैं, एंड दैट कैन बी द एक्सचेंज एड्रेस. तो जब ट्रांजैक्शन होगी मेरे अकाउंट से टू बॉब, तो बॉब जो होगा he will see a transaction coming from exchange address on the blockchain. Does that make sense? Yes. जी. इसमें anonymity effect नहीं होगी? Anonymity कैसे इफेक्ट हो रही है? exchange को तो पता लग रहा है ना, मतलब आप किसको पैसे भेज रहे हैं. एक्सचेंज को तो सब कुछ पता लग रहा है. ऑनलाइन वॉलेट ये तो वही बात है कि देखें जैसे ईमेल है, ठीक है? ईमेल इज अ प्राइवेट, मतलब ईमेल जो मीडियम है वो प्राइवेट है. उस प्रोटोकॉल में देयर इज नो रीजन फॉर एनीवन टू नो कि आप किसे ईमेल क्या कर रहे हैं, ठीक है? बट आप जब जीमेल टाइप चीजें यूज करने लगते हैं तो जीमेल नोज एवरीथिंग दैट यू डूइंग बिकॉज यू आर यूजिंग अ सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग. डज दैट मेक सेंस? ऑनलाइन वॉलेट एक्सचेंज ही कंट्रोल करेगा. ऑनलाइन वॉलेट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ वर्चुअल, उन्होंने आपको टूल दे दिया है कि जी आपने इसको पैसे भेजने हैं तो हम आपके बिहाफ पे भेज देंगे. And you're not doing actual transactions yourself. The exchange is doing the transaction on your behalf. तो बॉब को नजर आएगा कि जी मुझे इस एक्सचेंज से पैसे आए हैं. He'll know कि it's Alice, but he will see कि ये एक्सचेंज के एड्रेस से आए हैं. इसी तरह अगर मैं फिर अगर कोई और यूजर किसी और को पैसे भेजता है, लेट्स सपोज चार्ली को पैसे आते हैं, तो चार्ली विल नोटिस कि जी मुझे भी इसी एड्रेस से आ रहे हैं पैसे, because this is the exchange's address. एक्सचेंज को पता होगा. Exchange knows everything. Because exchange is doing this for you. मतलब आपके behalf पे कर रही है. नेट वाला कॉन्सेप्ट है. हाँ, NAT knows everything that is happening, sort of. Yes. तो ऑनलाइन वॉलेट्स में जो कॉइन्स जो इनपुट होते हैं, दे आर टिपिकली डिफरेंट फ्रॉम आउटपुट कॉइन्स. जैसे हमने कहा था ना कि हर कॉइन यूनिक है, बिकॉज उसका एक इनपुट है, एक आउटपुट है, एक ट्रांजैक्शन है. यहाँ पे क्या होगा कि जी मैं कॉइन रिसीव कर रहा हूँ फ्रॉम एड्रेस ए, एंड मैं फिर वही कॉइन्स आगे ट्रांसफर कर रहा हूँ किसी को, तो उसे मिल रहे हैं फ्रॉम एड्रेस बी. ठीक है? हाँ, बिकॉज हो सकता है कि एक्सचेंज के पास 50 वॉलेट हो, एक वक्त में वो एक से पैसे भेजे मेरे बिहाफ पे, दूसरे वक्त में दूसरे से. तो एक तरह से व्हाट इज हैपनिंग इज कि ब्लॉकचेन पे आपकी जो लिंकेज है दैट इज बीइंग ब्रोकन अप. ठीक है? तो एक तरह से यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेसी या एनोनिमिटी, जस्ट एक टू अ सर्टेन एक्सटेंट. जी. जैसे ब्लॉकचेन में तो आपको कुछ अमेंड करना या कुछ चेंज करना या उसे हैक करना मुश्किल होता है, लेकिन ऑनलाइन वॉलेट को तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल हाँ, होता है. ऑनलाइन एक्सचेंजेस तो रोज हैक होती हैं. सर, वो तो बहुत आराम से हैक फिर होती एक तरह से बिटकॉइन इनसिक्योर हो गया ना कि ऑनलाइन वॉलेट तो इनसिक्योर है. तो सेंट्रल हाँ, ऑनलाइन वॉलेट्स आर इनसिक्योर. वो फिर उसके फिर और लोग पीपल हैव कम अप विद वेज टू, मतलब दे हैव कम अप विद टेक्निक्स कि जी हम कीज जो हैं वो ऑनलाइन स्टोर ही ना करें. वो कीज जो हैं वो स्टोर हो कहीं ऑफलाइन हो किसी जगह पे, और फिर पीरियोडिकली वो छोटी छोटी अमाउंट्स में वो ट्रांसफर हो. सर, तो किसी इस ने तरह। भी बिटकॉइन यूज करना है, उसने एक्सचेंज से हेल्प लेंगे, वो ऑनलाइन नहीं, आप एक्सचेंज से खरीद लें, फिर आप खुद यूज करें, जिस तरह मारू कॉइन को आप कर रहे हैं. मारू कॉइन इज योर ओन थिंग. अगर आप इफ यू वांट टू यूज एन एक्सचेंज तो देन यू हैव दीज रिस्क्स. लोग क्या करते हैं कि वो एक्सचेंज से फिर इंश्योरेंस भी ले लेते हैं, इन केस द एक्सचेंज गेट्स हैक्ड तो आई हैव इंश्योरेंस. तो वो भी दैट इज अ कांसेप्ट एज सर वेल. ऑफलाइन कहाँ स्टोर होता है जो आपकी हैश आप यूएसबी में कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सर कॉपी कोल्ड स्टोरेज. यूएसबी अगर यूएसबी करप्ट हो जाती है, इसकी कॉपीज बन जाती है. हाँ, कर सकते हैं कॉपी. आप जो हार्डवेयर वॉलेट्स लेते हैं उनके साथ उनका एक सीड होता है जिससे वो जनरेट करता है एड्रेसेस. तो वो सीड आप पेपर पे लिख के रख लेंगे सेफ ड्रॉअर में. फिर आपका अगर वॉलेट ब्रेक हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप नया वॉलेट खरीदें, उसमें वो सीड एंटर करें, यू विल गेट द सेम एड्रेसेस जनरेटेड अगेन,
and you can use the same सारी वो keys आपकी फिर से regenerate हो जाएंगी. So that's offline storage. तो यहाँ पे आप दे रहे हैं पैसे, but they're going out through different addresses. अच्छा, तो इससे एक बड़ी interesting चीज़ आई थी कि ये एक this is from 2013 एक study आई थी which showed कि there is a link between Dread Pirate Roberts and Satoshi. तो what they noticed was कि they noticed एक account था जिसको सातोशी ने बेसिकली they knew कि सातोशी के कौन से coins थे शुरू के, because शुरू के majority of coins belong to सातोशी. तो they saw कि जी सातोशी ने एक पेमेंट की है to someone and that ends up in Silk Road's cluster. ठीक है, तो they thought कि जी सबसे जो notorious बंदा है Bitcoin universe में Dread Pirate Roberts, उसका एक link आ गया with the hero of Bitcoin. तो that was a very big story and they इसको काफी publicity मिली. और फिर finally one person came forward and he said कि नहीं जी this was actually my address and I am not with Satoshi or with Dread Pirate Roberts. So he took responsibility for that. They had to retract the. So what this type of thing demonstrates is कि आप ये clustering और ये guesswork कर भी लें तो you end up with these false positives. You might come up with a link. और ये जो था ना ये जो Israeli scientist था जिसने किया था who suggested this his name is Adi Shamir. He's one of the godfathers of cryptography. मतलब he invented public key cryptography जो हमने पढ़ी थी ना शुरू में. तो वो एक किस्म की बहुत this got a lot of publicity and then they had to retract it. ये November 23rd को थी and वो November 27th को they had to retract the story. अच्छा. तो we showed कि जी online wallets जो हैं they do some sort of mixing या anonymity हो आपको वैसे मिल सकती है. But again there is no guarantee that that is actually happening. ठीक है, आपको पता तो नहीं है कि वो एक्चुअली कर भी रहे हैं. हो सकता है उनके पास हर बंदे का ओरिजिनल वॉलेट हो. प्लस हो सकता है कि दे मेंटेन इंटरनल रिकॉर्ड्स ताकि आपकी ट्रांजैक्शन मिक्स हो भी जाए बट दे स्टिल हैव इंटरनल रिकॉर्ड्स व्हिच शोड एग्जैक्टली किसने किसको ट्रांसफर किया. तो दैट डजंट गिव यू मच एनोनिमिटी. एंड दे लाइकली नीड टू मेंटेन इंटरनल रिकॉर्ड्स फॉर सिक्योरिटी एंड लीगल रीजंस. अगर किसी ने आप में से एक बैंक में काम किया तो या विद फाइनेंशियल इंडस्ट्री तो देयर आर थिंग्स KYC, know your client legislation कि आपको exact track रखना है आप किसके पैसे किस तरह हैंडल कर रहे हैं. AML, anti money laundering legislation है पूरी इसकी. तो वो आपकी आइडेंटिटी का भी रिकॉर्ड रखते हैं. तो it's just like traditional banks. अगर मैं कोई blank check या कोई money order किसी को दे दूं तो बैंक will know everything that's happening in the background. तो एक तरह से there is extra risk because if someone hacks an exchange तो they know my entire history all the way back to as मतलब वो पूरा मेरा क्लस्टर निकाल सकते हैं. ट्रेडिशनल बैंक में अगर वो हैक करें they might get just information related to that particular bank. They won't know कि मेरी और क्या activities हैं. But अगर exchange को हैक करें they might get a picture of the whole thing because the entire blockchain is public. So this is something that's that you need to be aware of. तो इसमें आपने you have to read chapter 6 completely. फिर ये links हैं 5 stupid things Dread Pirate Roberts did. So these are things that leaked his identity. आपको मैंने बताया था ना वो लाइब्रेरी में बैठा था बड़े आराम से and वो Silk Road चला रहा था and then FBI showed up पूरा रेड किया उन्होंने लाइब्रेरी में जाके. तो फिर there is a link anonymity is dead which discusses these in more detail. और ये this is a very interesting story about how DigiCash blew everything. What is DigiCash? आपको याद है DigiCash? DigiCash was the company that David Chong formed. ठीक है? So David Chong revolutionary idea इसने 2-3 companies बनाई हैं which came up with जो cutting edge technology थी उस वक्त की. E-voting में इसने company बनाई which had extremely amazing technology, revolutionary technology and DigiCash. And both companies failed because of his personality and his problems. मतलब ही इसने रेड मारी. तो अगर आप में से कोई फ्यूचर में कोई कंपनी चलाना चाहता है या यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर तो दिस इज एन आइडिया ऑफ व्हाट नॉट टू डू. वो होता है ना वी लर्न टू बिहेव फ्रॉम दोज हु कैन नॉट. तो दिस इज द आइडियल. तो ये प्लीज डिटेल में देखिएगा. तो
तो ये ब्रिलियंट था बंदा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आया कि हाँ जी वी वांट टू, हम विंडोज में इनकॉर्पोरेट करेंगे। He says I don't have time today, प्लीज आप चाहें मुझे तंग ना करें, मैं बहुत बिजी हूँ। इस तरह की चीजें चॉम डिड। एंड द थिंग इज कि he was so rich कि he didn't care कि he thought कि since I'm so brilliant everyone has to come to me. So oh that's how. अच्छा, अब हम जल्दी से we'll go through the next set and then we'll take a break and I'll try कि ये 15 मिनट में हो जाए because this is very very easy. अच्छा, online wallets we saw, अच्छा we just covered this slide. No guarantee of mixing, उनके पास records होंगे, अगर वो security और legal compliance कर रहे हैं तो फिर तो definitely records होंगे, and अगर उनके पास कोई warrant आए तो they will tell the FBI everything about you. So you can't depend on online wallets for anonymity. तो to replace this gap, एक नई चीज आई Bitcoin में, which was the concept of dedicated mixes, which is over here. A dedicated mix is a service. वो क्या करते हैं कि it's a centralized entity, and होता क्या है कि 50 लोग, let's suppose if 50 people want to be anonymous, so all of them send their money from their own address to this mix service, and after a certain period of time the mix will send them the money from different addresses. ठीक है, उससे क्या होता है कि इनपुट आउटपुट का जो लिंक है वो ब्रेक हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, कि आप हाँ इट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो मिक्सेस थे जो आए हुए थे इंटरनेट पे, दे डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स, दे सेड कि जी वी डोंट कीप रिकॉर्ड्स, बट यू कांट, मतलब दे डू नॉट आस्क कि जी आपकी आइडेंटिटी क्या है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, मैंने एक लिंक डाला हुआ है इसके नोट्स में, आप देखिएगा। यू गो टू द वेबसाइट, वहां पे सिर्फ होगा कि जी ये हमारा एड्रेस है, आप हमें पैसे भेज दें और अपना एड्रेस डाल दें जो दूसरा नया वाला है, एंड विल सेंड इट देयर। उसकी गारंटी क्या देते हैं? किस चीज की गारंटी? कि वो पैसे वापस भी करेंगे। हाँ, देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो गारंटी, उसके विल लुक इनटू दैट अभी। तो इसमें हाँ वही, दैट्स अकाउंटेबिलिटी इशू, देयर इज नो गारंटी। तो द लॉजिक वाज के फॉर अ मिक्स टू बी पॉपुलर इट हैज टू हैव अ रेपुटेशन, और अगर वो मिक्स एक दो बड़े फ्रॉड करे इस तरह के, तो देयर रेपुटेशन विल गो डाउन, पीपल विल स्टॉप यूजिंग इट। तो इट इज इन देयर इंटरेस्ट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बट अगेन देयर इज नो गारंटी, हो सकता है कि दे वेट टिल दे आर रियली पॉपुलर, फिर सारे एक ही दफा में आप लेके गायब हो जाए, और इस तरह हुआ है, काफी मिक्सेस ने किया है। तो these are known as mixes or mixers. In the real world they're called laundries. जो माफिया जब अपने पैसे मिक्स करती है ना, तो आपने देखे होंगे वो माफिया बॉसेस को लॉन्ड्री शॉप रखी होती है उन्होंने, तो लोग आते हैं वो विद बैग्स फिल्ड विद मनी, तो वो वहां जाता है देन, so that's also a word called laundry. And authors इसमें कहते हैं कि we prefer not to use this word because this has a negative meaning. So since we are not moral people, हम सिर्फ टेक्निकल लोग हैं, तो वी प्रेफर यूजिंग मिक्स और मिक्सर। अच्छा, तो मिक्स का एक और तो एक तो अकाउंटेबिलिटी इशू है विच इज वेरी क्लियर। व्हाट इज द अदर इशू? द अदर मेजर इशू, इफ यू वांट टू बी एनोनिमस, द मिक्स कैन स्टिल सी कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जी द एफबीआई इज प्रिटेंडिंग टू बी अ मिक्स, ठीक है, ये होता है। ये जो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज और ये टॉर के नोट हैं, काफी इन्होंने खुद चलाए होते हैं। फिर वो अभी जो नहीं, वो यूनिवर्सिटी का स्कैंडल आया था कि एफबीआई ने यूनिवर्सिटी खुद बनाई थी, और फिर जो स्टूडेंट्स हैं ना, हाँ। जो वो काउंसलर्स होते हैं अमेरिका के, जो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप पैसा दें और हमें एडमिशन दे देंगे, तो एफबीआई ने खुद अपनी एक यूनिवर्सिटी सेट की थी, और फिर उन्होंने अभी वो स्कैंडल आया ना वो पकड़ा। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी भी अपनी थी? ये सुनने मतलब हाँ, हो सकता है काउंसलर्स के थ्रू इस तरह की चीजें वो करते हैं। ये जो एडवर्ड स्नोडन की जो लीक्स आए थे, वो एनएसए का जो था, दे शोड कि जी जीसीएचक्यू इज यूके's इंटेलिजेंस एजेंसी। तो एक दिन वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कोई मीटिंग हो रही थी, तो दे सेट अप देयर ओन फेक साइबर कैफेज, ताकि सारे डिप्लोमेट्स आके उनके यूज करें, ताकि वो अपनी ईमेल चेक करें, सब कुछ हो, ताकि उनके पास सारे पासवर्ड्स आ जाएं। तो इस तरह के काम वो बहुत रेगुलरली करती है। एक दफा जब मिक्स करने वाले ने पैसे वापस कर दिए, तो कैसे उसको ट्रैक रखेगा?
नहीं, मिक्स विल नो कि मैंने इस इनपुट एड्रेस से लिया था, इस आउटपुट में दिया था, तो ही नोज कि ये फिर आउटपुट जहां भी जाएगा तो दैट ही नोज के आप बाकी सबसे एनोनिमस है बट मिक्स से एनोनिमस नहीं है. तो हाउ कैन यू फिक्स दैट और हाउ कैन यू ट्राई टू फिक्स दैट? सर वही जो एड्रेस वाला था कि हाँ. एड्रेस हाइड कर देना. एड्रेस कैसे हाइड करते? नहीं होगा. नहीं, यू यूज मल्टीपल मिक्सेस. हाँ, मिक्स नेट यूज कर लें इंस्टेड ऑफ अ सिंगल मिक्स. आपको तो खैर यू रेड ऑन दैट. तो यू यूज अ सीरीज ऑफ मिक्सेस. अब टॉर की जो कॉन्सेप्ट है, टॉर में क्या होता है कि यू यूज अ सर्किट ऑफ 3 और मोर नोड्स. व्हाई डू यू यूज 3 और मोर नोड्स? बिकॉज वन नोड नोज के इनपुट और आउटपुट क्या है. हाँ, तो यू नीड 3 नोड्स ताकि बिल्कुल ही वो ब्रेक हो जाए लिंक. एंड द आइडिया इज कि आपके अब यहाँ से पैसे मेरे इस मिक्स में गए और इस मिक्स को मैं इस मिक्स का इनपुट एड्रेस दे दूंगा और फिर इसको मैं उसका दूंगा एंड फाइनली आई गेट द मनी ओवर देयर. नाउ यहाँ पे इफ इवन वन ऑफ दीज मिक्सेस इज ऑनेस्ट तो दैट्स गुड इनफ, द लिंक इज ब्रोकन. तो लोग भी ये करते हैं कि जो ये जब से ये पकड़ा गया ना ड्रेड पायलट रॉबर्ट्स, तो इफ यू वांट टू यूज अ VPN यू यूज 3 और 4 VPNs और उनको आप इन सीरीज यूज करें ताकि आपकी ट्रैफिक एक VPN में जाए, वहां से निकल के दूसरी में जाए, फिर वहां से निकल के फाइनली आपके पास आए. एंड यू ट्राई टू यूज VPNs व्हिच आर इन डिफरेंट कंट्रीज ताकि FBI can't get a VPN in Russia as well as a VPN in China. VPN चाइना में तो है ही VPNs, but Russia, Africa, and you keep regularly changing VPNs, so that makes it hard. सर जैसे आप पहले मिक्सर को जब आप दे रहे हैं, आप डेस्टिनेशन में एड्रेस जो है वो मिक्सर 2 पर दे रहे हैं. हाँ. तो उसके बाद मिक्सर 2 के बाद जाएगा उससे क्या मतलब कि मिक्सर 2 के पास जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उससे कैसे पता चलेगा कि आगे उसने मिक्सर 3 को देना, मिक्सर 3 को कि उसने किस एड्रेस पे. अगर आपने पहली दफा नहीं, आप जाते हैं ना मिक्सर के, when you go to the website, the mixer says कि जी this is my address which is input जिस पे आपने पैसे भेजने, ठीक है, एंड आप जो जिस एड्रेस पे रिसीव करना चाहते हैं वो बता दें ताकि आपको उस एड्रेस पे आ जाएगा. ठीक है. आप जब भी आप मिक्सर की साइट एक्सेस करेंगे एवरी यूजर विल गेट अ डिफरेंट इनपुट एड्रेस. वो ऑन द फ्लाई जनरेट कर रहे होते हैं. ठीक है. तो पहले के पास मैं जाऊंगा तो मुझे वो एड्रेस दे देगा और उसका जो रिसिपिएंट एड्रेस है वो मैं दूसरे मिक्सनेट की वेबसाइट से जाके ले लूंगा. तो ये सारे मुझे एड्रेसेस मिल जाएंगे. मैं आई जस्ट गिव देम एंड द गुड थिंग विल बी के दे वोंट इवन नो कि दे आर कनेक्टेड. ठीक है. दिस पर्सन वोंट नो कि ये ट्रांजैक्शन मुझे मिक्सनेट से आ रही है. ठीक है. तो इस तरह से क्योंकि हर मिक्सर के पास ढेर सारे वो एड्रेसेस होंगे तो हाँ. एक मिक्सर को नहीं पता कि वो दूसरा एड्रेस मिक्सर का है या किसी यूजर का है. एग्जैक्टली. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है. चलिए गुड. इसको हम जल्दी करते हैं. तो you need best practices for using mixes. Use uniform transactions. Why should you use uniform transactions? सर यूनिफॉर्म नहीं होंगी तो पता लग जाएगा कि एक ही तरह की ट्रांजैक्शन जो है डिफरेंट ट्रांजैक्शन जो है. हाँ. अगर आपके पास यहाँ पे transactions आ रही है into a mix and this transaction is 10 bitcoins and this is 10 bitcoins and this is 1 bitcoin and you would know कि हाँ जी ये जो है this is the odd one out so this is probably the same input output is probably the same. ठीक है. So you can make those educated guesses. आपकी समझ में नहीं आया? देखें ये तो 2 10 के हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास 1, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 10 होगा. ठीक है. तो you won't know कि ये दोनों में से ये दोनों कौन से हैं, but you would know कि this is this. So that is why you should have mixes. Generally they specify कि आप हमें transaction भेजें, so it has to be of suitable size chunks ताकि सारे uniform हो. 10 10 10 अंदर आए, 10 10 10 बाहर निकले. So there is no way to tell. So ये तो मिनिमम उसका चंक होगा तो मिनिमम वैल्यू का होगा. मतलब सपोज कर लेते हैं हाँ. आपने अगर मैंने आपको 10 करना है सपोज और मुझे कोई 1 कर रहा है तो अगर चंक ही 10 का होगा तो 1 कैसे करेगा? उसके लिए that is a problem. तो what people can do is they've suggested कि आप क्या करें कि mix can specify कि जी मेरे 3 standard chunk sizes हैं, उनमें से कोई भी आप भेज दें तो that's fine. जैसे I can have 10, I can have 5, I can have 1. जिसके पास कम है वो मनी नॉर्मल क्यों करे? हाँ ये भी रीजन है कि आप 1. तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर 10 है you can break it into 2 chunks of 5 and send it. So you can do very fancy things इस तरह से.
तो all mixed transactions must ultimately have the same value or at least uniform values, ताकि वो mix हो सके सही तरह। अच्छा, हाँ तो इसमें फिर standardization issues हैं कि should you have large chunks, small chunks, should you have multiple sizes? Large chunks is not good for small inputs. Small chunks का क्या मसला है? Small chunks are not efficient when you have large inputs. सर मल्टीपल ट्रांजैक्शन होगी। अगर मैंने 100 bitcoins करने हैं mix और one मेरा वो है तो फिर बहुत ही inconvenient हो जाएगा। और multiple sizes का क्या मसला होगा कि अगर मैंने multiple specify किए हुए कि फिर वो anonymity set जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर मेरे पास पहले ये anonymity set था 10 का, but अब हो जाएगा इसमें ये 10 का होगा, ये 5 का होगा और ये 1 का होगा, तो the set becomes smaller. अच्छा, इसमें you can have side channel attacks. मतलब for instance, people can look at the timings of your transactions and still figure out कि जी ये transaction आपकी है, ये किसी और की है, something like that. So client side should be automated. What this basically means is कि आपने अगर transaction for instance अगर let's suppose के FBI जो है वो मेरी monitor कर रही है मेरी bandwidth, my traffic is encrypted but they know कि मैं कोई Bitcoin के साथ काम कर रहा हूँ, तो they might be able to look at my traffic and see कि जी इस Mixnet ने जब coins release किए तो सबसे पहले इस बंदे ने use किए, तो they might be able to guess कि हाँ जी this must be one of these people, so they can use this side information to get some information about you, side channel attacks. That is why one thing that can be done is कि आप process को automate कर दें, इस तरह से कर दें कि इस तरह की जो discrepancies हैं वो uniform हो जाएं. What this means is कि let's suppose यहाँ पे mix output कर रहा है, आपको पैसे भेज रहा है 10, 1, 10 जो भी है, let's suppose it's sending 10 to 3 people, ठीक है? Let's suppose FBI is monitoring all 3. FBI will then be able to figure out based on their network traffic usage कि who is the first person to use his coins, ठीक है? अगर FBI मुझे monitor कर रही है, मैंने फौरन इस 10 को spend कर दिया, they'll know, ठीक है? तो you can do things like कि जी आप for instance आप ये जब transactions output करें तो आप log time लगा दें कि जी you can't avail these bitcoins for 1 day. That would mean no one can spend within that time. This is not a very good example, but I just want कि you get a sense of what I'm saying. कि side channel जो attacks होते हैं, उनको you can sort of try to address those. अगर वो एक जैसे अलग-अलग ट्रांजैक्शन के बजाय एक ही ट्रांजैक्शन में 10 डिफरेंट को देगी होगी, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा क्योंकि उसमें एक ही मतलब उससे आपको टाइम का नहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम पे उसने दिया तो अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम के बाद उसे मिल जाएंगे पैसे, आप क्योंकि आप एट अ टाइम सारे ढेर सारे लोगों को हाँ इसमें यहाँ पे ये सिचुएशन दिस इज नॉट सम वेरी वेल वर्कड आउट टेक्निक, ये बस कॉमन सेंस लोग कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दिस मोस्ट ऑफ दिस कोर्स इज जस्ट कॉमन सेंस, तो ये दिस इज जस्ट सम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वरना तो आप बहुत आसानी से मिक्सर का कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि अगर कोई समझे अगर मिक्सर हर 5 मिनट बाद आपको पैसे वापस कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छा इस वक्त आया तो आपको उसी को दिया होगा। हाँ एग्जैक्टली। सर ये साइड चैनल अटैक टाइम को स्टैम्प करके पता चलता है। साइड चैनल अटैक इज कि आप जो मेन सिस्टम है you're not attacking that, you're using some information from the side to try to figure out what is happening. That is a side channel attack, it's not the main. हाँ it can be anything, it can be जैसे for instance आपके जो होते हैं आप कुछ लोगों के पास स्मार्ट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, they use smart cards जिन पे की स्टोर होती हैं, तो वो what people do is कि they monitor smart card की energy usage, वो complex circuitry लगा के they monitor energy usage and based on that they try to figure out कि अंदर की कौन सी स्टोर है, ठीक है, तो you're using this extra information to try to attack what's actually, so you're not attacking the cryptography because वो आप नहीं कर सकते, but you're using the side information, so that's the side channel. So you just need to know what side channel is, वो बाकी चीज़। अच्छा, mixers then charge fees because obviously mix is not a free service, so they should charge a fee, but
फी भी जब चार्ज होती है तो देन इट इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज देन फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक ट्रांजैक्शन करूं एंड लेट्स सपोज द फी इज 1 बिटकॉइन, ठीक है, तो मिक्स इज टेकिंग इन 10 बिटकॉइंस फ्रॉम 3 पीपल एंड इट इज गिविंग आउट 9 बिटकॉइंस टू ईच पर्सन, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि लेटर ऑन जब मैं ये 9 बिटकॉइन स्पेंड करूंगा तो पीपल विल बी एबल टू गेस कि दिस इज प्रॉब्ली फ्रॉम मिक्स, बिकॉज ये बहुत यूनिक एक वो नंबर है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो what people recommend is कि इसको भी obscure करने के लिए you can do some other technique कि जी let's suppose आपने 30 bitcoins ये सारे आप ही के हैं and you want these mixed and let's suppose there's this is all the way till 100, overall आप 100 bitcoins भेज रहे हैं, आपकी फीस क्या बनेगी? 100 बिटकॉइन पे 10 bitcoins. So what the mix can do is कि it can give you 9 outputs of 10. ठीक है? और एक रुपीस चाहिए। हाँ, तो वो आपका एक आउटपुट इस फॉलो कर लें ताकि वो आपका वो ना हो, वो जो सिग्नेचर जो एक आ जाता है ना मिक्स का, that is not लेकिन there. अगर आप सारे 10 बिटकॉइन एक ही अकाउंट से देंगे तो इस तरह तो मिक्सर को पता चलेगा ना कि आपने 100 के 100 दिए, तो आप different account से 10 दें। करके दे दें। चलें आप 10 करके दे दें, आप मतलब the mixer should know that this is all coming from one party and mixer will then send those to 10 different accounts, but वो एक फिर 10 bitcoin बीच में दिखा लेगा। तो इस तरह वो जो आप 9 वाली बात करें वो तो इस तरह से आप नहीं, you're still charging because यहाँ पे you're sending in 100 bitcoins but you're outputting 90. 10th जो है वो अपने किसी एड्रेस को भेजेगा and it will keep that will be its own payment. सर ये लास्ट पॉइंट ये क्या आप 100 के बिटकॉइन भेजिए उसके बाद 99 पता कर नहीं, आपने 100 भेजे, ठीक है, पहले केस में you send 100 and you got so 10 outputs of 10, sorry 10 inputs of 10, ठीक है। नहीं, let's suppose कि mix का जो है input size is mix can only accept amounts of 10 bitcoins, ठीक है, so you break 100 into chunks of 10 इधर आए होते हैं and it रोज will give कपड़े you होते हैं 10 chunks, 10 outputs of 9, ठीक है, because it's charging 1 bitcoin per 10, ठीक है। But उससे क्या होगा कि that is very obvious to anyone else कि जी this is probably a mix, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करें कि you given 10 inputs, because देखें नहीं ये 0.1% फीस है, ठीक है, तो आप हाँ अगर आप लेट्स सपोज कोई कंप्यूटर खरीदें, ठीक है, तो आप पेमेंट करें तो उस पर 17% टैक्स लगेगा, तो वो अगर कोई पब्लिक बंदा देख रहा होगा, he'll know कि हाँ जी दिस इज टैक्स because it's 17% of this, तो इस तरह से। तो यहाँ पे तो instead of giving 10 outputs of 9, why not give 9 outputs of 10? यस सर That's the idea. टैक्स नहीं कटेगा बट वो हाँ basically you swallow one input. अपनी किसी और आउटपुट पे तो आपने किसी एक अकाउंट में लिखा हुआ हाँ तो ये सब बात कर रहे हैं इक्वल लोग नहीं, अगर इक्वल इनपुट है और इक्वल आउटपुट तो एक काम हो जाएगी तो आप डिवाइड कर सकते हैं। नहीं वो आपका नहीं वो what that means is कि 10 आउटपुट्स तो 10 ही होंगे, तो 10 भी उसका अपना बट एड्रेस 9 होगा जो हैं वो जाएंगे टू द यूजर और 10 में उसका वो खुद दे देगा अपना एड्रेस। एक यूजर सारा यहाँ पे भी assuming कि एक है, अच्छा बट बेसिकली what they suggest, what these authors suggest is कि होना क्या चाहिए कि अगर ये मिक्स है ना and आपके पास कोई 1000 इनपुट्स आ रहे हैं, 1000 chunks of 10, तो ये randomly it should just swallow one. वो फिर उस बेचारे का लक होगा किसी का कि वो चला जाए, बट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल एवरेज आउट टू जी। सर तो उसने जिस आउटपुट्स को भेजे उनमें से किसी एक आउटपुट को फिर नहीं मिलेगा, यस हाँ किसी एक को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं हर मिलेगा। दफा किसी को नहीं नंबर तो वो ठीक है, that's fine. सर हर दफा एक ही नंबर आता रहे हाँ मनी इज द तो सेम, 9 मिलने के बिल्कुल। बजाय बाकी सब 10 12 को एक आउटपुट नहीं मिलेगा। नहीं देखिए मेरे पास 100 है, मैंने आपको दिया टू मिक्स, आप 90 मुझे वापस कर देंगे, ठीक है, तो नो वंस गेटिंग एक्स्ट्रा। तो कोई स्किप नहीं ये हो रहा है।
उसी में जा हाँ, तो यहाँ पे भी आप 100 देंगे to the mix and you'll get back 90, but you'll get it in chunks of 10, not chunks of 9. That's the difference. Because chunks of 10 में you can't tell कि यहाँ से कोई deduction हुई है. हाँ? इसको जाके स्टडी करें बुक में केयरफुली. अच्छा, ये इफ यू गो टू बिटकॉइन देखिए, एंड तो ये उनकी वार्निंग है कि मिक्सिंग सर्विसेज में themselves be operating with anonymity. As such, if the mixing output fails to be delivered or access to funds is denied, you're basically on your own, and just आप खुद ख्याल रखें अपना. अपने सामान की खुद हिफाजत. हाँ, अपने हिफाजत खुद, अपने सामान की हिफाजत खुद. तो अब हम ब्रेक कर लें. Yes, sir. ब्रेक कर लें.